بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العزة والجلال، وهو الذي أنقذنا من الزيغ والضلال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الكمال والجمال، وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الحال وفي المآل. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، او كما قال عليه الصلوات والتسلیم. حضرات گرامی، اس حدیث مبارک میں سید الاولین والآخرین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اہل علم کی ذمہ داری بیان فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، ہر بعد کے آنے والے لوگوں میں ایسا طبقہ ضرور ہوگا جو میرے دین میں پیدا کی جانے والی تحریفات کو صاف کرے گا، غلو کرنے والوں کے باطل کو دور کرے گا، اور ابطال پسند باطل پسند والوں کے انتحال کو صاف کرے گا. ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریفات، و انتحال المبطلین، اور باطل پرستوں کا انتحال، و تأویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی غلط تعویلات. یہ تین اہم ترین کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارک میں بیان فرمائے. اہل علم ان تینوں کاموں کی تفصیلات اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس وقت ان تفصیلات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ حدیث اس وقت پڑھنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ ابھی کچھ دنوں سے جو ہمارے معاشرے میں ممبر پر مٹکا بجانے اور رباب پہنچانے کا جو واقعہ ہوا، جن صاحب سے یہ واقعہ صادر ہوا ہے ان صاحب کی طرف سے کسی توبہ کا، کسی رجوع کا کوئی اعلان نہیں ہوا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بے شمار ہمارے سادات و مسلمان اس کے فالوور بنے ہوئے ہیں، اور اس کی ان غلط حرکات سے وہ بچنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ بات عرض کی جائے. خطاب خاص طور سے ان بھائیوں سے ہے جو بھائی اس سے وابستہ ہیں، بلکہ اس کے فدوی بنے ہوئے ہیں، اس کی عقیدت ان کے دلوں میں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا صحیح ہے. میرے بھائیوں، دنیا کے ہر کام کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ کسی ماہر سے مدد لی جائے. اگر علاج معالجہ کرانا ہو تو ڈاکٹر سے مدد لی جاتی ہے. اگر کنسٹرکشن کرنا ہو تو کسی انجینئر آرکیٹیکٹ سے مدد لی جاتی ہے. اگر کوئی قانونی معاملہ ہو تو قانون کے ماہرین ہی کی رائے معتبر ہوتی ہے. دین کا معاملہ ان تمام معاملات سے بہت زیادہ نازک ہے. اس لیے اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ دین صرف ایسے اہل علم سے سننا ہوتا ہے جو اہل علم مستند ہوں، جو واقعتاً عالم ہوں. سوال یہ ہے، عالم کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے قرآن پڑھا ہو، قرآن کا ترجمہ کسی استاد سے پڑھا ہو، تفسیر پڑھی ہو، حدیث پڑھی ہو، فقہ پڑھی ہو، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، یہ تمام علوم پڑھے ہوں. اور یہ تمام علوم چونکہ عربی میں ہیں، یعنی علم تفسیر، علم حدیث، علم اصول تفسیر، علم اصول حدیث، علم اصول فقہ اور سارا فقہ یہ چونکہ عربی میں ہے، اس لیے عربی زبان کا ماہر ہونا ضروری ہے. اور عربی زبان کے ماہر ہونے کے لیے علم نحو، علم صرف، علم لغت، علم اشتقاق، علم معانی، علم بیان یعنی علم بلاغت، اور اس سے متعلقہ دیگر علوم، اور عربی زبان کی پھر جملہ مہارت، یہ ساری چیزیں جب ہوں گی اس کے بعد پھر ایک انسان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ عالم بنا. صرف اردو کی کتاب سے ترجمہ پڑھ کر کے کوئی آدمی عالم نہیں بن سکتا، ایسے جیسے کوئی انسان میڈیکل کی کتاب پڑھ کر کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. تو جن صاحب کا یہ واقعہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ کبھی طبلہ بجاتے ہیں، کبھی مٹکا لے کر مسجد میں پہنچے ہیں، یہ اچھی طرح سے سمجھیں وہ عالم نہیں ہیں. عالم اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے سے، کسی استاد سے کوئی علم دین حاصل نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے کسی عصری تعلیم کے کسی شعبے میں ان کی تعلیم اچھی رہی ہو، لیکن دین کے تعلیم میں وہ کسی بھی طرح سے قابل اعتماد نہیں ہے. وہ قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ پاتے، قرآن کریم کا ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے، کسی حدیث پاک کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے ہیں، لہذا وہ عالم نہیں ہیں. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں تو میں بطور مثال کے اگر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں کشمیر میں ماضی قریب میں
جو उलमा गुजरे हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि ये है उलमा, उनकी मिसाल जैसे मीर वाइज हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहिमहुल्लाह ताला, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब वतरहाली, मौलाना मोहम्मद कासिम शाह साहब बुखारी, मौलाना अलाउद्दीन साहब, मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ इंद्राबी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी, मौलाना हकीम गुलाम नबी साहब। और इस तरह ये हैं वो उलमा जो मुस्तनद थे, जिन्होंने बाकायदा इल्म दीन पढ़ा था और बाकायदा उस्तादों के सामने उन्हें ज़ानो अदब तय किया था, और वो कह सकते थे कि हमने कुरान भी पढ़ा है, तफसीर भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी है, हदीस की तशरीहात भी पढ़ी हैं, फ़िक़्ह भी पढ़ी है, उसूल फ़िक़्ह और उसूल हदीस जो उलूम इस्लामिया कहलाते हैं, ये सारे उलूम इनके पढ़े हुए थे। ये थे अहले इल्म, और उन्हीं के नक्श कदम पर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वादी में बहुत सारे अहले इल्म हैं जिन्होंने बाकायदा इस्लामी उलूम को पढ़ा है और वो मुस्तनद आलिम हैं। तो मुस्तनद आलिम ही से इल्म दीन सीखना होता है। जो साहब ये कह रहे हैं वह हरगिज़ आलिम नहीं हैं, और ना उनकी कोई बात काबिल एतमाद है। वो फ़िक़्ह नहीं जानते, उन्हें हदीस नहीं पढ़ी है, उन्हें तफसीर नहीं पढ़ी है, वो अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं है, वो सही तर्जमा नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने वो चीज़ उम्मत के सामने लाई जो 1400 साल की तारीख़ में कभी थी ही नहीं। सवाल यह है कि मस्जिद के मिंबर पर मटका बजाना और रबाब पहुँचाना अगर ये दीन का हुक्म था तो ये दीन का हुक्म सिर्फ किसी एक गाँव के लिए है, ये दीन का हुक्म सिर्फ एक मस्जिद के लिए है या पूरे आलम के लिए है? और अगर पूरे आलम के लिए है तो आज तक उम्मत ने इस पर अमल क्यों नहीं किया? और ये आज से है या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने से है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने से लेकर आज तक दुनिया की किसी मस्जिद में कहीं ये अमल नहीं पाया गया, और आज एक शख्स ये कर रहा है और साथ में कहता है कि आज तक इसमें किसी ने अमल नहीं किया, अब मैं इसको अमल करके ला रहा हूँ। तो सवाल ये, अगर ये दीन का हुक्म था तो खुद उन्होंने आज तक इस पर अमल क्यों नहीं किया? और ज़रा गौर करें, जब मस्जिदों में इस तरह से मटके बजाए जाने लगे तो हर मिंबर से बजाय क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के फिर ये नग़्मे शुरू हो जाएंगे, तो दीन का हुलिया क्या बनेगा? इसलिए जो भाई इससे वाबस्ता हैं वो अच्छी तरह से समझ लें कि गुमराह इंसानों के पीछे नहीं चलना होता है, और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि गुमराही में फंसा हुआ इंसान उस गुमराही से निकल आए और वह राह हक़ पर आ जाए। और इस सिलसिले में हमारे कई भाइयों ने बहुत अच्छी कोशिशें की, जिनमें उलमा कौंसिल के ज़िम्मेदार हज़रात कोशिशें की उन्होंने कि शायद मुलाकात हो। मुझे नहीं मालूम है कि बाद में वो मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई और क्यों नहीं हो पाई, लेकिन अगर वो मुलाकात हो जाती तो उम्मीद की जा सकती थी कि वो हज़रात बहुत अच्छी तरह से बड़ी तशफ़ी के साथ इल्मी अंदाज में उनको बात समझाने की कोशिश करते और वो कामयाब हो जाते अगर ये अपनी इस्लाह करने के लिए आमादा होते। लेकिन अगर वो मुलाकात करने को भी तैयार नहीं और इधर से वो उलमा को चैलेंज करते रहते हैं, कहते हैं अनूक सपानी इल्म, उधर से जब उनसे मुलाकात करने का इरादा होता है तो तरह तरह से टाल मटोल करते हैं। तो इस वक्त उनके लिए तो हम ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह उसको इस गुमराही से निकाल दे। ऐसा ना हो कि आज तो चंद दिनों की ज़िंदगी में वो ये तरह तरह की गलत हरकतें करेंगे और आखिरत में ऐसी पकड़ में फंस जाएंगे कि वहाँ बच नहीं पाएंगे। ज़ाहिर कब्र में 3 सवाल के बजाय 4 सवाल का ऐलान करना ये तहरीफ दीन है। और आज जब वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे कानों में बात करता है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे कानों में आकर के कहते हैं, और मस्जिद का मिंबर फ़ख्र कर रहा है, बज़बान हाल कह रहा है कि आज पहली मरतबा दीन की बात, बल्कि यहाँ तक की तहरीक की बात कही कि अल्लाह फरिश्तों में ढंडोरा पीट रहा है। अल अमानुल हफीज़ नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये ताबीर भी निहायत ही नामुनासिब ताबीर है कि अल्लाह के फ़ेल को कहा जाएगा ढंडोरा पीटना, और वो भी फरिश्तों में, इस बात पर कि मेरे एक बंदे ने मस्जिद के अंदर मस्जिद में मिंबर पर मटका बजाया। अल अमानुल हफीज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज़्यादा अलमनाक बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह की ज़ात आली के मुतालिक इस तरह की गलत बातें कही जाएँ और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आली के मुतालिक इस तरह की गुस्ताखी की जाए कि वो आकर मेरे कान में आकर के कहते हैं। चुनाचे आप हजरात ये सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं, और इस सुनने के बाद ऐसे इंसान से मिलना, उसके बाद सुनना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। उससे आपके दीन को कोई नफ़ा नहीं होगा, बल्कि ख़तरा इस बात का है कि ईमान को नुकसान हो जाए। और ख़ुद उस शख्स को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए उसका ईमान सलामत रहा है या नहीं, और वो जो ये कुछ कर रहे हैं इससे दीन को नफ़ा होगा या नुकसान होगा, और उसके नतीजे में जो दीन में तहरीफ हो रही है उसका नुकसान उसको दुनिया और आखिरत में क्या होगा। अगर नफर दोस्त आसन कनस तल वनान कथ बोजन ना, यिथै पठ मे कनस तल कथ वनान खुदाय, कनस तल कथ वनान पनुन रसूल खुदाय। तिमो वोन मे अश आज जादू खुश कुछ पठ हो था आज यथिस जमानस मज खुदाय सज कथ मीन कथ पन्न सेजन साधन चारन सामीन अमि जरिए
मे पन रहमतन लिल आलमीन वनान है क्या परेशान क्या परेशान वो मगर खलक परेशान मे हमदर्द परेशान अयाल मे परेशान दोपन परवाह मुबार कहें फैसला गि पान दोपन आई गनिया चढ़ गनिया बह तूत खुश विसान ओत्र पे चान हरकतन पज पे अमि किस्मुक हावान मान उम्मतियन पत गो खुदा खुदा सह दपान सह मलकन मज वनकस डंडूर दिवान वो मेस बंदस कूत सख्ती कूत अजाब खलको कोर्मुत कम लेक खलक कड़ान कम तान जन करान मीन आयात समझाने मोन कुरान समझाने मैं हदीस के शुरू में जो मैंने हदीस पेश की थी वो हदीस के तमाम किताबों में मौजूद है। उलमा की जिम्मेदारी है कि जब कहीं इस तरह का कोई बातिल सर उभारने लगे तो उम्मत को मुतनब्बिह करें कि इस बातिल से अपने आप को बचाएं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी इसी तरह के दावे करता था कि मुझ पर वही आ रही है, मैं ईसा मसीह हूँ और मुझको ख्वाब में ये बताया गया और मुझे ये इल्का किया जा रहा है। इसी तरह की बातें वो भी कहा करता था। और आज ये साहब भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे कान में आकर के बात करते हैं और अल्लाह के नबी आसम मेरे कान में आकर के बात करते हैं। वही का दरवाज़ा तो बंद हो चुका है। तो आज इस तरह के दावे को इंसान करे और अहले इल्म उसको बर्दाश्त कर लें और खामोशी इख्तियार कर लें ताकि उम्मत गुमराही के में जाए। यह अहले इल्म का शेवा नहीं है। इसी के साथ जो भाई उसकी तायीद करना चाहते हैं वो सोचें वो किस चीज़ की तायीद कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक शख्स गुमराही फैलाने के लिए उठ खड़ा हुआ था और हम उसके तायीद करने वालों में शामिल हो गए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद जो इससे पहले भी बेशुमार भाइयों के सामने आ चुका होगा, मैं उस इरशाद मुबारक को पढ़ता हूँ। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन आपने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब की उसका ठिकाना जहन्नम है। अगर क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस हमारे भाई से पूछेंगे कि मैंने तो तेरे कान में आकर कोई बात नहीं कही थी, फिर तूने मेरी तरफ ये बात क्यों मंसूब की कि मैंने तेरे कान में आकर के ये बात कही है, तो उस वक्त सोचें क्या उस वक्त उनके पास कोई जवाब होगा। और कहीं ऐसा तो न हो कि इसके नतीजे में उनकी आखिरत ख़राब हो जाए, ऐसा ना हो कि वो कहीं ख़तरनाक अल्लाह ताला के मुआवजे की जद में आ जाएं। अल्लाह करे उनको हिदायत हो जाए और इन तमाम हरकत से वह तौबा करें। और इससे पहले भी बेशुमार उलमा ने उनको तंबीह की है, बल्कि बाज़ भाइयों ने इनके मुतालिक कोई फतवा भी सामने लाया है। मैं तहक़ीक़ के साथ नहीं बता सकता कि वो फतवा कब और किस तरह लिखा गया और उस वक्त इनकी क्या हरकत थी, लेकिन बहरहाल जब उस वक्त के उलमा ने भी इनको मुतनब्बी किया और आज के उलमा भी इनको मुतनब्बी कर रहे हैं और उन उलमा की तरफ से जिम्मेदारी अदा करते हुए ये दरख्वास्त आपके सामने पेश की जा रही है। ये दरख्वास्त नहीं है बल्कि ये अल्लाह का हुक्म और दीन का तकाजा है। लिहाजा वो तमाम भाई जो बड़े शौक़ के साथ इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आँख बंद करके इनको मान रहे हैं और इनके इन हरकत को समझते हैं कि ये कोई फ़क्र है और ये कोई फ़कीरी है और ये कोई तसव्वुफ़ है या कोई ये रूहानियत है, हरगिज़ नहीं। न ये कोई रूहानियत है, न कोई ये तसव्वुफ़ है, न ये कोई फ़कीरी है। ये सरासर दज्ल और फरेब है और इससे अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला शानहू हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाए और हमारे दीन की इन मिलावटों में हमको सही दीन पर कायम दायम फरमाए और हर तरह की इफ़रात व तफरीद और हर तरह के गुलू से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।